यस, तो देखो आप sin a plus b into sin a minus b is equal to sin square a minus sin square b. What we can say? Sin square a को we can write down 1 minus cos square a minus sin square b को 1 minus cos square b. You can write down this. Clear है? तो 1 minus cos square a minus of 1 and minus minus plus cos square b. फिर minus 1 plus 1, so this becomes cos square b minus cos square a. This point is clear or no? So sin a plus b into sin a minus b is equal to cos square b minus cos square a, sin square a minus sin square b. This is clear to you or not? Next point of this is cos a plus b into cos a minus b. So this becomes cos square a minus sin square b. This becomes cos square a minus sin square b. So cos a plus b into cos a minus b is equal to cos square a minus sin square b. This is clear na? This is clear na? So cos square a minus sin square b. So next part of this. अब देखो, अब इसको और चेंज कर सकते हैं. You can change this 1 minus sin square a minus, और इसको चेंज कर सकते हैं 1 minus cos square b. अब देखो next step what we can say, 1 minus sin square a minus 1 and this becomes minus minus plus cos square b. This minus 1 and plus 1 will be cancelled out. So we can write down this as cos square b minus sin square a. Is it clear to all of you now? So cos square b minus sin square a. We can also write down this as cos square b minus sin square a. I think this point is clear to all of you. Clear है ना? Next हम लोग देखते हैं आगे. Next आपका है cos sin a plus b. Important formula. This is your important formula. So sin a plus b plus sin a minus b. So sin a plus b plus sin a minus b. Next is what? Sin a plus b minus sin a minus b. Clear है? Cos a plus b plus cos a minus b and cos a plus b minus cos a minus b. ठीक है, समझ में आया आपको? तो sin a plus b plus sin a minus b is equal to sin a plus b minus sin a minus b, cos a plus b plus cos a minus b and cos a plus b minus of cos a minus b. तो ये तीनों का आपको फॉर्मूला समझना है. You should have to understand the concept related to this important terms. So sin a plus b plus sin a minus b, what we can write down? जल्दी बोलो आप. Sin a plus b into sin a minus b, what we can say? कि ये आपका क्या होगा? Sin a plus b होगा sin a into cos b plus cos a into sin b. Clear है? And plus this becomes sin a into cos b minus cos a into sin b. तो बचेगा क्या आपका? 2 into the remaining part will be minus और plus वाले part cancel out हो जाएंगे. So the remaining part will be 2 sin a into cos b. You can write down 2 sin a into cos b. This point is clear to all of you ना? Next part of this, sin a plus b minus sin a minus b. What we can say? Sin a plus b minus sin a minus b. तो we can say that कि जो आपका इसमें फर्स्ट वाला पार्ट होगा 2 sin a into cos b will be, मतलब sin a into cos will be cancel out in both the situation. So the remaining part will be 2 into cos a into sin b. This is clear ना? 2 into cos a into sin b. This point is clear, I think, to all of you. Next part, cos a plus b plus cos a minus b. Try to understand. Cos a plus b plus cos a minus b. What we can say? Cos a into cos b minus sin a into sin b. और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, तो ये what would be the result of this? 2 cos a into cos b. It is clear ना? 2 cos a into cos b. And the next part of this, cos a plus b में माइनस होगा. ठीक है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 sin a into sin b. 2 sin a into sin b. क्लियर है सबको? दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना? अब देखो ध्यान से, इसी के ऊपर बेस्ड जो है वो C plus D फॉर्मूला होता है, इसी के ऊपर बेस्ड होता है. वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. CD फॉर्मूला, इसको बोलते हैं CD फॉर्मूला.
दिस पॉइंट इज क्लियर ना। सी डी फॉर्मूला, तो देखो आप यहाँ पे इसमें भी चार फॉर्मूले होते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, समझना है इस फॉर्मूले को, साइन सी प्लस साइन डी, व्हाट वी कैन से साइन सी प्लस साइन डी। अब देखो ये सी के जगह पे आपने माना a प्लस बी, देखो c की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, साइन सी प्लस साइन डी, समझ में आ रहा है सबको? यस, कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड, आई एम सेइंग यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड। a प्लस बी, व्हाट वी कैन से दैट कि साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, तो c की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, a प्लस b के, कंपेयर दिस with this part, so this becomes what, a plus b, c is equal to a plus b, as well as d is equal to how much, d is equal to a minus b। this point is clear or not? तो यहाँ से a और b की वैल्यू 2 sin a into cos b दिया हुआ है आपको, तो sin a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, किसके टर्म में, c और d के टर्म में। तो यहाँ से देखो दो इक्वेशन है, a plus b is equal to c और a minus b is equal to d, दोनों को सॉल्व करोगे तो ऐड करोगे तो प्लस बी और माइनस बी वाले पार्ट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू सी इज गिवन, a माइनस बी इज इक्वल टू d इज गिवन, दिस इज टू इक्वेशन दैट यू हैव टू सॉल्व। क्लियर है पॉइंट? तो नेक्स्ट प्लस बी एंड माइनस बी विल बी कैंसिल आउट आफ्टर एडिंग दिस, this becomes a plus a 2a is equal to c plus d, so a is equal to, you can write down c plus d by 2. This point is clear? Similarly, you can put the value of a to get the value of b. So the value of b will be b is equal to c minus d by 2. Have you understood this point or not? So what we can say, sin c plus d by 2, मतलब sin c plus sin d is equal to 2. 2 into sin a into cos b, so sin a. What is the value of a here? c plus d by 2. So sin c plus d by 2 into, what about next part, cos into c minus d by 2. This point is clear to you or not? This point is clear na? Next is sin c minus sin d is equal to, sin c minus sin d is equal to 2 into, what we can say, cos a into sin b, तो cos a, तो cos 2 into cos a, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, c plus d by 2, this is cos a into sin b, sin b is c minus d by 2. This point is clear na? This point is clear, c minus d by 2. तो sin c minus sin d is equal to 2 into cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. This point is clear na? Okay. So cos c plus d, cos c plus cos d, तो cos c plus cos d, cos c plus cos d, ये क्या हो जाएगा, 2 into cos a into cos b, तो 2 into cos a, cos a is what, a is your c plus d by 2 into cos b, cos b is your c minus d by 2. Clear है point? तो cos b is c minus d by 2, तो 2 into cos a c plus d by 2 into cos b, b is c minus d by 2. This point is clear to you or not? Clear है सबको? Next part of this, cos c minus cos d, and cos c minus cos d, what we can say, minus 2 into sin a into sin b, तो minus 2 into sin a, तो a की वैल्यू हो जाएगी c plus d by 2 into sin b हो जाएगा आपका c minus d by 2. क्लियर है ना? यू कैन से दिस, ये आपका फॉर्मूला यहाँ से जनरेट होता है, तो sin c plus sin d का फॉर्मूला यहाँ से जनरेट होता है, sin c minus sin d का फॉर्मूला यहाँ से जनरेट होता है, cos c plus cos d का फॉर्मूला यहाँ से जनरेट होता है, cos c minus cos d का फॉर्मूला यहाँ से जनरेट होता है. This becomes minus 2 into sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2. This point is clear to you or not? Clear है सबको? तो questions एक लिखेंगे आप सब लोग. Question number 1. देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं. Sin of n plus 1 into a. The value of sin n plus 1 into a into sin n plus 2 into a plus cos n plus 1 into a into cos n plus 2 into a is equal to इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. तो a नंबर आपका है cos n plus 1 into a into cos 2a. b नंबर है आपका cos a. c नंबर है sin a
एंड डी नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है साइन n प्लस 2 इंटू ए प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू ए. यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. तो कैसे सॉल्व करेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर. देखो n की वैल्यू फर्स्टली व्हाट विल बी आवर अटेम्प्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो फर्स्टली आप क्या करेंगे? n की वैल्यू पुट करेंगे. तो यू शुड हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n हियर. n की कोई भी आप वैल्यू पुट कर लो. 0 पुट करना चाहते बिकॉज देयर इज नो एनी कंडीशन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन फॉर n. तो n के लिए कोई कंडीशन आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है. तो व्हाट विल डू, n की वैल्यू हम पुट करेंगे. हमारा मेथड क्या कर रहा है कि n की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे. तो n की वैल्यू आप क्या पुट कर दो? 0. n की वैल्यू आप 0 ले सकते हैं. यू आर फ्री टू टेक एनी वैल्यू. क्लियर है पॉइंट? यू आर फ्री टू टेक एनी वैल्यू. तो n is equal to 0. तो what this becomes? Sin a into sin 2a plus cos a into मतलब cos a into cos 2a. क्लियर है पॉइंट? तब देखो ये किसी का फॉर्मूला है. तो देखो cos a into cos 2a प्लस sin a into sin 2a. तो देखो cos a into cos b प्लस sin a into sin b. समझ में आया? cos a into cos b plus sin a into sin b. इसी का तो फॉर्मूला होता है. एंड cos a into cos b plus sin a into sin b क्या होता है? cos a minus b. तो cos a minus b मतलब cos a किसी को भी मान सकते हो a minus 2a and cos a minus 2a will be cos of minus a and cos of minus a आर्गुमेंट में अगर minus a भी होता है तो cos a हो जाता है. तो B नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर है सबको? सर ऐसे करो sin 2a का मान वैल्यू sin 2a की वैल्यू आप पुट करेंगे. देन sin 2a की वैल्यू क्या पुट करेंगे? अच्छा, यू आर सेइंग दैट कि sin a into sin 2a दिस इज गिवन प्लस cos a into cos 2a दिस इज गिवन. यस, व्हाट यू नीड टू डू? व्हाट डू यू वांट टू डू इन दिस क्वेश्चन? sin 2a का मान रखो. sin 2a का मान रखो आप. तो sin 2a का मान क्या रखना चाहते हैं आप? 2 sin a. अच्छा, आप ये करना चाहते हैं कि दैट यू हैव टू पुट दिस. तो आप इतना करेंगे तो आगे ये स्टेप बढ़ जाएगा ना. 2 sin a into cos a प्लस cos a into और ये आपका हो जाएगा cos 2a का फॉर्मूला किस में रखेंगे? अब देखो ये sin स्क्वायर हो जाएगा into cos a. तो आपको किसी एक में चेंज करना होगा, वहां से आपका आएगा. तो या तो इसको sin स्क्वायर a को फिर आप cos a में चेंज करेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे cos 2a को cos a में फॉर्मूला लिख दो आप. तो क्या होता है? cos a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1. क्लियर है पॉइंट? ऐसे भी आप कर सकते हैं. यू कैन सॉल्व दिस. सर ये थीटा में समझ में आया? तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस देखो आप 2 और ये क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर है. ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर. पहले एक स्टेप बता दीजिए आप, उसके बाद क्वेश्चन पूछिएगा. 2 into sin स्क्वायर a into cos a प्लस ये आपका क्या हो जाएगा? 2 cos क्यूब a minus cos a. क्लियर है पॉइंट? दिस becomes 2 into sin स्क्वायर a क्या हो जाएगा? 1 minus cos स्क्वायर a into cos a plus 2 cos cube a minus cos a. This point is clear or not? 2 minus 2. तो ये आपका हो जाएगा this becomes 2 cos a. 2 into cos a minus 2 cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर a into cos a ये हो जाएगा cos cube a. क्लियर है? प्लस 2 cos cube a minus cos a. तो ये आपका कैंसिल आउट होके क्या बन जाएगा? 2 cos a minus cos a. ये भी आपका cos a आएगा. बट ये स्टेप इसमें इंक्रीज हो जा रहे हैं ना. दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन का आंसर तो आप निकाल सकते हैं, ये भी मेथड आपका ठीक है. बट इसमें देखो 1 2 3 4 उसके बाद 5th स्टेप में आंसर आ रहा है आपका. क्लियर है ना? लेकिन आपका यहाँ से अगर ये चीज आप समझ जाते हैं तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाता है. cos a minus b का फॉर्मूला वो लिखा हुआ है. दिस पॉइंट इज क्लियर ना? तो 1 स्टेप में आपका आंसर आ रहा है और यहाँ पे आपका 4 स्टेप में आंसर आ रहा है. तो आंसर तो दोनों मेथड से आएगा, बट यू शुड हैव टू टेक केयर ऑफ दैट व्हिच मेथड इज मोर एफिशिएंट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है, तो कौन जो है मेथड आपका काफी ज्यादा एफिशिएंट है कि जल्दी हो जाए और टाइम इसमें कम लगे. क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट पार्ट, अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे. यस, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3. तो 1 का क्या हो जाएगा? सबका आ गया. तो देखो 1 plus cos 2 थीटा, इसको एक साथ आप लेंगे. क्लियर है पॉइंट?
तो 1 प्लस cos 2 थीटा विल बी 2 क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस दिस बिकम्स sin 2 थीटा टाइम्स sin 2 थीटा यू कैन राइट डाउन 2 sin थीटा इनटू cos थीटा दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट अपॉन व्हाट यू कैन राइट डाउन 1 प्लस sin 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा तो देखो 1 माइनस cos 2 थीटा को एक साथ ले लो तो 1 माइनस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 2 थीटा आपका हो जाएगा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट क्लियर है सबको अब देखो इसमें cos थीटा कॉमन ले लो इसमें क्या करोगे आप sin थीटा कॉमन ले लो तो देखो 2 इनटू 2 भी कॉमन आ जाएगा cos थीटा अपॉन 2 इनटू sin थीटा क्लियर है ना और ये cos थीटा हो जाएगा cos थीटा प्लस दिस बिकम्स sin थीटा एंड दिस बिकम्स cos थीटा प्लस sin थीटा ठीक है तो ये आपका दिस एंड दिस पार्ट विल बी कैंसिल आउट 2 and 2 will be cancelled तो cos theta upon sin theta that is equal to cot theta clear है D number option is the correct answer of this question तो D number option is the correct अब देखो 1 minus 2 sin square theta ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है समझो यहाँ पे cos square theta is equal to 1 minus 2 sin square theta that I have already discussed with you cos 2 theta is cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta तो देखो 1 minus 2 sin square theta दिस इज रिटेन तो इसको आप क्या लिखोगे cos 2 theta तो cos 2 into theta theta क्या हो जाएगा आपका pi by 4 plus theta so this becomes what cos pi by 2 plus and 2 into theta 2 theta this becomes cos pi by 2 plus theta pi by 2 plus theta समझ में आ रहा है sin 2 तो ये क्या हो जाएगा pi by 2 का है और pi by 2 में होता है तो cos का क्या हो जाएगा sin हो जाएगा ठीक है और देखो cos जो है pi by 2 plus 2 theta में means something in second quadrant में cos क्या होता है नेगेटिव होता है तो माइनस sin 2 थीटा हो जाएगा क्लियर है तो माइनस sin 2 थीटा डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट क्लियर है pi by 2 plus 2 थीटा मतलब समथिंग इन सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है तो नेगेटिव आ जाएगा और cos pi by 2 जब होता है 90 डिग्री का मल्टीपल तो cos का sin लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट तो cos का आपका sin 2 थीटा हो जाएगा sin की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में sin की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में जो सेकंड क्वाड्रेंट में है उसमें sin की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव देखेंगे या cos की वैल्यू देखेंगे ना cos इसके साथ में है ना ये तो cos के बाद आ रहा है इसका cos का क्या है ये कॉम्प्लीमेंट है sin क्लियर है तो माइनस sin 2 थीटा नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे sin a minus c plus 2 sin a plus sin a plus c ये दोनों को हमें करना है sin a minus c plus 2 sin a plus sin a plus c देखो sin c plus sin d का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे आप ठीक है तो sin c plus sin d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और sin c plus sin d का यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ठीक है जी समझ में आ रहा है सबको yes, तो ये देखो a minus c plus a plus c by 2 यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 sin a तो देखो जो भी मिडिल में होता है ना समझिए इस पार्ट को जो भी मिडिल में होता है यही कॉमन आएगा और बाकी सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे इसका यही मेथड होता है सॉल्व करने का तो आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है देयर इज नो एनी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कैसे इसलिए कि आपका यहाँ से अगर sin sin c plus sin d का अगर फॉर्मूला आप बैठाते हैं तो sin c plus sin d क्या होता है 2 into sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 you have to write down this तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस की जैसे ही आप a minus c plus a plus c upon 2 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका 2a plus c और minus c तो कैंसिल आउट हो जाएगा a plus a 2a upon 2 a हो जाएगा तो 2 into sin a into cos c हो जाएगा ठीक है तो cos c और cos c कैंसिल हो जाएगा देखो आपका इसमें भी sin है तो sin आपका कॉमन हो जाएगा जो कॉमन बाहर आएगा वही तो बचेगा बाकी रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे क्लियर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा sin a upon sin b बी नंबर ऑप्शन ऐसे आप डायरेक्टली कर सकते हैं समझिए इस पार्ट को फिर से sin this becomes a minus c and plus sin a plus c and plus 2 sin a upon this is written sin b minus c plus sin b plus c plus 2 sin b this point is clear or not देखो sin c plus sin b this point is clear sin c plus sin d plus 2 sin a तो sin c plus sin d क्या हो जाएगा 2 into sin c plus d by 2 तो means a minus c plus a plus c by 2 this point is clear ना into cos a minus b by 2 so a minus c minus
a प्लस सी बाई 2 प्लस 2 साइन a, क्लियर है पॉइंट सबको, अपॉन व्हाट विल डू साइन b माइनस सी प्लस साइन b प्लस सी, क्लियर है। तो सेम एज 2 साइन ऑफ b माइनस सी प्लस b प्लस सी अपॉन 2 इनटू cos what we can write down b minus c minus of b plus c upon 2 plus 2 sin b. दिस पॉइंट इज क्लियर ना। तो अब देखो ये c और c कैंसिल, और सॉरी यहाँ पे c नहीं, यहाँ पे जो है a कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका c कैंसिल आउट होगा, तो c और c यहाँ पे कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे आपका a और a कैंसिल आउट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका c और c कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका b और b कैंसिल आउट होगा, तो दिस बिकम्स 2 into, अब देखो साइन a प्लस a 2a अपॉन 2 साइन a 2 into साइन a into cos what c माइनस ऑफ c माइनस 2c अपॉन 2, और cos में माइनस होता है तो प्लस ही हो जाता है, तो cos c हो जाएगा प्लस 2 साइन a अपॉन व्हाट वी कैन से 2 into, देखो नेक्स्ट में b प्लस b 2b अपॉन 2, तो दिस बिकम्स साइन b and into cos, and this becomes minus c minus 2c upon 2, so cos c and plus 2 sin b. This point is clear or not? Clear है? 2 sin a, आपका ऊपर से क्या करोगे आप, न्यूमरेटर वाले पार्ट से 2 sin a कॉमन ले लोगे, यहाँ से 2 sin b कॉमन हो जाएगा, बाकी cos c plus 1 बचेगा और cos c plus 1 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका क्या बचेगा 2 sin a अपॉन sin b। तो एक्चुअल में क्या हुआ, आपका जो मिडिल वाला पार्ट था वही तो बचा, यहाँ पे इसके साथ में लेना है 2 और 2 दोनों साथ आएंगे ही आएंगे इसके साथ। क्लियर है पॉइंट, ये समझ में आया सबको? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे ना? यस सर। ओके, तो राइट डाउन दिस पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम आपको देते हैं सॉल्व करने के लिए। प्रीवियस ईयर नहीं, प्रीवियस ईयर नहीं है, लेकिन ऐसे आने के क्वेश्चंस उम्मीद होते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। जो आने वाले हैं वो भी आपको कराएंगे और जो प्रीवियस ईयर है वो भी कराएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इसको बोलते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। समझ में आया ना सबको? इसका बी नंबर ऑप्शन कैसे आपने सॉल्व किया? x को 90 ले लिया, x को 0 ले लिया, ओके, x को आपने 0 ले लिया, तो जब x को 0 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 10 अपॉन 1 प्लस 5 प्लस 10, तो दिस बिकम्स हाउ मच? देखो आप 6 प्लस 1 7, 15 और 7 22 और प्लस 10 32 अपॉन 16, तो इक्वल टू 2, तो 2 मीन्स 2 cos x, बाकी सब में अलग अलग डिफरेंट आंसर है ना, ठीक है। तो 1 प्लस 1 ये भी तो 2 आ रहा है ना, तो दो ऑप्शंस आपके सेम हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब इन दोनों में से ही कोई एक होगा, कोई और वैल्यू रख के, ठीक है। तो इन दोनों में से ही कोई एक होगा, क्लियर है आपको? तो आप क्या कर लो, अगर देखो cos, अगर x की वैल्यू 90 डिग्री रखते हो तो उस केस में ये क्या हो जाएगा 0, ये पॉसिबल नहीं है सर, cos 90 ये बी होगा सर, ये आपका 0 1 प्लस 0 और ये आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर में तो 0 बन जाएगा, किसमें cos 90 रखेंगे तो हाँ सर, नीचे भी 0 बन रहा है, हाँ, तो ये पॉसिबल फिर नहीं है 90 डिग्री। तो आप मतलब कोई दो बी और डी, आपको दो ऑप्शंस तो मिल गए ना इतना करने से, x की वैल्यू आपने 0 रखा तो दो ऑप्शंस तो मिले, आपको हेल्प मिला कि दो ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए, cos 2x एंड cos स्क्वायर x। तो दो ऑप्शंस में आपको कौन सा होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? 1 प्लस cos x तो पॉसिबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? व्हाई? इसलिए कि देखो हमेशा जो है इसमें फॉर्मूला किसका लगेगा, आपको इतना तो कॉमन सेंस है कि इसमें फॉर्मूला किसका लगेगा, c प्लस d का, cos c प्लस cos d का कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा होगा फॉर्मूला। तो cos c प्लस cos d में हमेशा जो है बाहर में क्या आता है 2 आता है,
2 इंटू समथिंग, तो देखो 2 इंटू समथिंग इसी में है, इसमें नहीं है प्रेजेंट, तो आप इस बेसिस पे इसको टिक कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, यू कैन टेक योर रिस्क एंड इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी बाय मेथड कैसे करेंगे सर 6x और 4x को 5x और x की टर्म्स में ले सकते हैं। यस, तो आप इसको देखो ऐसे कर सकते हो 6x को एंड 4x को, तो आपको ये करना है cos 6x प्लस what you can say cos 6x plus cos 4x and plus this is 5 cos 4x, clear a point, and plus what you have to write on here, Sir, 6 देखो cos आप यहाँ पे 6 15 cos 2x को 15 cos 2x को क्या लिखेंगे 10 cos 2x plus 5 cos 2x, तो plus 5 cos 2x and plus 10 cos 2x and plus 10, this point is clear or not? सर ये 6 cos 4x है कौन सा? सेकंड टर्म। हाँ तो 6 cos 4x है तो ठीक तो है ना, cos 4x किया और ये प्लस 5 cos 4x एंड प्लस 5 cos 2x और इसको कर दिया हमने 10 cos 2x, क्लियर है पॉइंट। अब उसके बाद आप सॉल्व कर जाओ, आ जाएगा आपका आंसर। नीचे में आपको क्या करना है, इसे अब देखो cos 5x इसके साथ अगर लोगे तो दिस इज cos x, तो इसके साथ 10 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहले ऊपर आपका न्यूमरेटर पार्ट का आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, ये समझ में आ रहा है पॉइंट, ये तो थोड़ा सा आपको लंबा जाएगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिए सब लोग। सर इससे बढ़िया x की वैल्यू 30 रख के सब 30 के मल्टीपल ही बनेंगे उसमें, सर हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू 30 रख के आप सारे कर सकते multiple हैं, तो सारे मल्टीपल्स ही हैं, बस फिर वो सॉल्व हो जाएगा। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, x की वैल्यू रख के ही पुट करके कर सकते हैं, बाकी ऐसे जाएंगे तो अब बाय मैट्रिक थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, क्लियर है, समझ में आ गया ना सबको। तो ये आपको इसी तरह से करना है, किसी इसको सॉल्व करके लाना है आपको, ठीक है। इस तरह से cos c plus cos d का इसमें फॉर्मूला एक बार लगाएंगे, एक बार इसमें 5 कॉमन लेंगे तो cos c plus cos d का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और इसमें एक बार जो है 10 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 plus cos 2x, 1 plus cos 2x, you can write down 2 cos square x, इस पॉइंट इज क्लियर ना, तो इस तरह से आप इसको कर पाएंगे। नीचे देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, cos 5x और cos 3x एंड प्लस 10 cos x, तो आपको जो ऊपर का पार्ट है ना, ऊपर में जो आएगा वो हो सकता है इससे कैंसिल आउट हो जाए, ये वाला पार्ट को आपको एज इट इज रखना है। इफ cos a is equal to m into cos b, then इसकी वैल्यू क्या होगी, what will be the value of this part, can you explain me? इसकी वैल्यू क्या होगी, if cos a is equal to m into cos b, then तो आपको अब इसमें वैल्यू पुट करनी है a और b की, तो देखो a और b की ऐसी वैल्यू पुट करनी होगी आपको कि ये cos a is equal to m cos b के इक्वल आ जाए, इस पॉइंट इज क्लियर ना, यस। 45 और 30 45 और 30, तो 45 जब रखोगे, किसमें 45 आप रख रहे हैं, किसी में भी रखेंगे सर। देखो इसमें 45 आप रखेंगे या इसमें रखेंगे, सर b में रखेंगे, b में 45, ठीक है। तो cos 45 अगर आप रख रहे हैं, cos 45 मींस b की वैल्यू अगर 45 ले रहे हैं आप, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका m/√2, क्लियर है। तो अब आपको a cos से a की भी वैल्यू कोई सपोज करो, a की वैल्यू आप 0 डिग्री ले सकते हैं ना, यू कैन टेक, देखो a की वैल्यू अगर 0 डिग्री आप लोगे तो उस केस में कहीं जो है वो सेम नहीं हो रहा है, तो a की वैल्यू आप 0 डिग्री लेंगे, cos 0 1 होता है, m की वैल्यू आप कितनी पुट कर दो, √2 कर सकते हैं इस तरह से। हां सर √2 आएगी, समझ में आ रहा है ना सबको, समझ में नहीं आ रहा है ये कौन ये वाला समझ ये वाला समझ में नहीं आया, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग बस। देखो b की वैल्यू आपको इस तरह से लेनी है, अच्छा ये देखो cos a upon cos b is equal to m, you can say that ना, cos a upon cos b is equal to m की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos a upon cos b, तो a की वैल्यू आप अपने तरीके से जो भी मानना है मान सकते हो, और अपॉन cos b, तो वहां से m की वैल्यू आएगी, तो a की वैल्यू क्या मानना है 45 अगर आपको सपोज करना है तो यू कैन टेक 45, या a की वैल्यू 0 और 90 रखने पे कहीं अनडिफाइंड हो रहा है क्या, नहीं, तो 0 और 90 रख दो ना, तो cos 0 एंड यहाँ पे आप रखेंगे तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो m की वैल्यू 0 ऑप्शन में रखने पे कहीं दो सेम नहीं होने चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, इसलिए कि इसमें जो है वो सेम हो जाएंगे आपके, हो सकता है दो ऑप्शन सेम हो जाए, 0 और 45 डिग्री, मतलब 0 और 90 डिग्री रखने पे। तो आप ऐसा करो कि cos a की वैल्यू 45, a की वैल्यू आपको 45 डिग्री रखनी है, a की वैल्यू 45 डिग्री रख दो आप, एंड b की वैल्यू आप रखोगे कितनी 0 डिग्री, क्लियर है पॉइंट, a की वैल्यू 45 डिग्री,
तो अब ये को देखो, अगर a की वैल्यू 45 रखोगे और ये 45/2 आ जाएगा ना, मुश्किल है। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम 30 90 रख के ऑप्शन आ रहे हैं आपको, चेक कर लो। 90 रख के भी नहीं आ रहा, ठीक है। 90 रखे 0 तो आप ऐसा कर लो, 60 रख लो एक को, कौन सा तो a को 60 रख लो और b को 0 रख लो। अब क्लियर है ना? या a को 30 भी रख सकते हो आप, a को 60 और b को 30। तो a को 60 और b को 30 रख सकते हो, तो cos 60 कितना हो जाएगा, √1/2 एंड दिस इज √3/2। दिस बिकम्स m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1/√3। क्लियर है ना? तो अब इस तरह से आप वैल्यू पुट करके देख लेना कौन सा ऑप्शन होगा। कर सकते हैं आप, चेक कर सकते हैं ना, यू कैन सर चेक। कंपोनेंट और डिपेंडेंट नहीं लगा सकते इसमें? यस सर। हाँ, इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो ही हम लगाएंगे एक्चुअल में, ठीक है। एक्चुअल में जो हम बाय मेथड अगर करेंगे तो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का ही रूल अप्लाई करेंगे। क्लियर? अगर इसको बाय मेथड हम करते हैं, देखो तो cos A, दिस इज cos A अपॉन cos B इज इक्वल टू n। तो ये एक लाइन में आंसर आ जाएगा जब आप कंपोनेंटो और डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो a प्लस b में क्या है, कॉट है, ठीक है। a प्लस b/2 में कॉट है। क्लियर है सबको? तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, कंपोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई कर दो। तो cos a d प्लस n या n प्लस d अपॉन d माइनस n, ये आप कर दो। तो cos b प्लस cos a अपॉन व्हाट वी कैन से cos a minus cos a माइनस cos b भी कर सकते हो, ठीक है। मींस n प्लस d अपॉन n माइनस d कर सकते हो ऐसे। तो cos a माइनस cos b, क्लियर है पॉइंट, इज इक्वल टू m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1, यही आ जाएगा। अब इसको आप इसमें अब फिर से अप्लाई Sin करना से- होगा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला एंड cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। तो आगे आपके आंसर्स आ जाएंगे। देखो cos c प्लस cos d क्या होता है आपका, 2 into cos c प्लस d/2, तो a प्लस b/2 into cos a माइनस b माइनस a/2, या a माइनस b/2 भी लिख सकते हो, दोनों सेम चीज है cos में। ये दिस बिकम्स 2 into sin a माइनस b/2 and into what we can write down, sin b minus a/2। this point is clear or not, is equal to m plus 1 upon m minus 1। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देख लेना आप इसको, cos b minus a मतलब cos a plus b/2 upon sin a minus a plus b/2, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका cot a plus b/2, इसको इधर ट्रांसफर करोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, tan b minus a/2। तो कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cot a plus b/2 cos upon sin is equal to m plus 1 upon m minus 1 and this becomes, ये हो जाएगा आपका cos b minus a/2 upon sin b minus a/2। तो ये हो जाएगा आपका tan b minus a/2। क्लियर है पॉइंट? दिस इज योर आंसर ए नंबर। इस तरह से आप कर सकते हैं। आपको समझ में आया पॉइंट? नहीं आया, ये पार्ट नहीं आया होगा। देखो ये sin b माइनस से इधर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये sin अपॉन cos आ जाएगा और sin अपॉन cos tan हो जाएगा। समझ में आया? इधर तो cot है ना, इस RHS में ट्रांसफर करोगे b तो क्या हो minus a जाएगा, ही होगा, tan हो जाएगा। b minus a ही होगा, a minus b नहीं होगा। यहाँ पे नहीं, ये a माइनस b अगर करेंगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा और माइनस किसी में है ही नहीं फिर। सर उधर cos a minus cos b लिख रहा है। कहाँ पे cos इसके ऊपर वाले स्टेप में से। ये वाले, हाँ, तो नीचे। cos a माइनस Cos cos b, तो cos a माइनस cos b ठीक तो है आपका, sin b माइनस t/2 होता है ना। 2 माइनस या तो आप बाहर ले लो या अंदर। अच्छा वो माइनस आपको फॉर्मूला में लिखा है बाहर, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। तो अगर वो 2 sin c प्लस d/2 अच्छा ठीक है सर। into 2 sin d minus c/2, ये आप याद रख लो, माइनस वो नहीं है, याद रखना, into sin d minus c/2। ये आपको ये इसके अंदर जाएगा ना माइनस साइन, तो ये a माइनस b क्या हो सर सकता फिर है, b माइनस वाला नहीं हो सकता क्या, c भी तो c कैसे हो सकता है, c कैसे हो सकता है, tan b minus a/2 है ना, यहाँ पे b minus a/2, या तो आप माइनस देखो, अच्छा आप माइनस आगे लगाओगे तो ये आप लिखोगे a minus b/2। जी सर। क्लियर है ना आपका? तो अब माइनस जब अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, b minus a/2। इस पॉइंट इज क्लियर ना? तो b minus a/2 माइनस जब आप ले जाओगे अंदर इसको, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस a एंड प्लस b। अगर सर उधर माइनस tan होता c वाले ऑप्शन में, माइनस tan b minus b बॉन्ड हाँ। टोटल हो गया। हाँ तो माइनस tan होता तो माइनस tan तो फिर यही ऑप्शन हो जाता है ना, b minus a/2 हो जाता।
Clear a point? Okay, student, I will discuss the next part of this in the next class.